جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد امتیازات سے نوازا۔ ان امتیازات میں ایک امتیاز معراج کا سفر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرش پر نہیں بلایا، جیسا معراج حضور کو کروایا ویسا کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو نہیں کروایا۔ یہ آپ کے امتیازات میں سے ہے، خصوصیات اور انفرادی کمالات میں سے ہے، اور دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اللہ نے 15ویں پارہ میں ذکر فرمایا۔ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش تک، اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا اور حضور کی احادیث میں اس کا بیان آیا۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے حصہ کو معراج کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجازاً دونوں کو اسراء بھی کہہ دیتے ہیں یا معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، منفرد انداز۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ آغاز بیان کا لفظ سبحان سے کیا۔ یہ لفظ سبحان ایسا آغاز بیان ہے جس سے فلاسفہ کے سارے اعتراضات دھل جاتے ہیں۔ جتنے عقلی اعتراضات ہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر معراج پر کوئی شخص سائنسی تحقیقات اور معلومات کو سامنے رکھ کر اعتراض کرے کہ ثقیل شے اوپر جا ہی نہیں سکتی، یا اوپر قرہ زمہریر ہے، وہاں سے کوئی گزرے تو کیسے بچ سکتا ہے، یا اتنی قلیل مدت میں اتنا لمبا سفر کوئی کیسے کر سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، جو اپنے بندے کو لے کر گئی ہے۔ گویا آغاز بیان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نظر جانے والے پر ہے، اور اللہ تمہاری توجہ لے جانے والے کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ جب تمہاری توجہ لے جانے والے کی طرف ہوگی تو اس کی طاقت، قدرت اور پاور اس قدر ہے، ہر حقیقت خود بخود تمہاری سمجھ میں اتر جائے گی۔ بندہ تو نہیں جا سکتا، لیکن خالق تو لے جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی، کسے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سوال یہ ہے، جسے معراج کرایا گیا وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہے، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہے، لیکن اللہ نے اسری بنبیہ ہی نہیں فرمایا، اسری برسولہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ اسری بعبدہ ہی فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ متعدد وجوہ ہے۔ نمبر ایک، معراج کا سفر خرق عادت سفر ہے، عادتاً ایسا کیا نہیں جاتا۔ عادت کے برعکس حضور معراج کے سفر پہ گئے۔ اب اس سفر کو دیکھ کر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے خرق عادت معجزات دیکھ کر ان کے بارے میں الوہیت کا نعرہ بلند کیا، یہاں خدشہ تھا اس سفر کو بنیاد بنا کر کوئی کمزور اعتقاد کا شخص
हुजूर के बारे में उलूहियत का दावा न कर बैठे। अल्लाह ने अकायद ईमान की हिफाजत का इंतजाम किया। ले जाने का मरहला बयान करते हुए फरमाया, असरा बिअब्दी, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। और जब हम कलामी का शर्फ बख्शा, हुजूर अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए, उस मरहला के लिए फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और जब वापस भिजवाया, मुलाकात और दीदार के बाद तहाइफ से दामन भर कर, तो फिर फरिश्तों से कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु पहले व रसूलुहु बाद में, ताकि कोई इस सफर की बुनियाद पर हुजूर के बारे में उलूहियत का दावेदार न बने। कोई ये ना कहे बशर हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता, बशर हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता। अल्लाह ने तीनों मरहलों पर सिफत अबदियत का जिक्र करके हकीकत बाशगाफ कर दी कि बशर हो के अर्शाते जावे मोहम्मद, बशर हो के अर्शाते जावे मोहम्मद, मलक हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता। असरा बिअब्दी, नबी ही नहीं नबियों के नबी है, रसूल ही नहीं रसूलों के रसूल हैं। लेकिन फिर फरमाया असरा बिअब्दी ही। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, मेराज के सफर में जब हुजूर अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने आपसे सवाल किया, हबीब आपको कौन सी सिफत और कौन सा लकब सबसे ज्यादा पसंद है? हुजूर ने अर्ज किया, तेरा बंदा होना, जिसे अरबी में अब्द कहते हैं। अल्लाह ने आपकी इस पसंद को महफूज कराया। और जब कुरान करीम में मेराज का सफर जिक्र किया तो नबी के पसंद किए हुए वस्फ से जिक्र किया। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। एक तीसरी वजह जिक्र करता हूं, वो ये है, एक है अल्लाह की जानिब से नबी और रसूल का बंदों की तरफ आना, एक है बंदों को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाना। जब अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आता है नबी और रसूल, गो उसके बेशुमार औसाफ हों, मगर इस सफर के मुनासिब सिफत नबुव्वत और रिसालत है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला। तो जब अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल बंदों की तरफ आता है, इसके मुनासिब सिफत नबुव्वत और रिसालत है, सिफत अबदियत नहीं है। इसलिए फरमाया इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन, यहां अबदन नहीं, कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला, यहां इला फिरऔन अबदा नहीं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आया जा रहा है, इसके मुनासिब सिफत अबदियत नहीं, सिफत नबुव्वत और रिसालत है। और जब नबी बंदों को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाता है, इसे सूफिया की इस्तिलाह में मकामे सैर इलल्लाह कहते हैं। और मकामे सैर इलल्लाह के मुनासिब सिफत नबुव्वत का जिक्र नहीं है, सिफत रिसालत का जिक्र नहीं है। अगरचे जाने वाला नबी ही नहीं, नबियों का भी नबी है, रसूल ही नहीं, रसूलों का भी रसूल है, लेकिन ये मकामे सैर इलल्लाह है। नबी सबको छोड़कर अल्लाह की तरफ जा रहा है, इसके मुनासिब सिफत नबुव्वत नहीं है, सिफत रिसालत नहीं है, सिफत अबदियत है। इसलिए फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। अब यहां एक इल्मी नुक्ता अर्ज करने लगा हूं,
असरा में रात को ले जाना शामिल और दाखिल है। असरा उस ले जाने को कहते हैं जो रात के वक्त में हो। रात का मफहूम इसमें शामिल है, लेकिन अल्लाह ने फिर अलग से कहा लैलन, रात को, लैलन, रात को, लैलन को सराहतन जिक्र किया। इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि लैलन को नकेरा जिक्र किया, अत्तनवीन लित्तकलील वत्तबईज। असरा ने यह तो बताया हुजूर को रात को मेराज कराया गया, लेकिन उसमें यह वजाहत नहीं थी कि रात सारी लगी या आधी लगी, कुल या जुज। लेकिन जब लैलन नकेरा होने की सूरत में बितसरीह जिक्र किया तो इससे यह बता दिया गया गो मेराज का सफर रात को हुआ, मगर रात भी सारी नहीं, थोड़ी सी लगी। अत्तनवीन लित्तकलील वत्तबईज। हुजूर जाके भी आ गए, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था। आप बैतुल्लाह से बैतुल मकदस, बैतुल मकदस से पहले आसमान पे, फिर सबा समावात को उबूर करके सिदरतुल मुंतहा पे, फिर जन्नतुल मावा में, फिर जहन्नम को देखकर अर्शे इलाही पे अल्लाह का दीदार, मुलाकात का शर्फ, हम कलामी का एजाज, तहाइफ का तबादला। उसके बाद फिर वापस पहुंच गए, रात सारी नहीं, थोड़ी सी लगी। अगर किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो, इतना तवील सफर और एक रात भी पूरी नहीं, यह कैसे हो गया? आइए समझाता हूं यह कैसे हुआ। यह ऐसे हुआ जब हुजूर इस कायनात से निकले और आलम बाला में पहुंचे तो कायनात का निजाम रोक दिया गया। यह कायनात रुक गई, ठहर गई, थम गई, तब तक न चली जब तक हुजूर वापस तशरीफ न ले आए। और यह क्यों हुआ? इस वजह से कि इंसान का एक जिस्म है, एक रूह है, आज़ाए जिस्मानिया तब तक हरकत करते हैं जब तक उनमें रूह मौजूद होती है। अगर रूह जिस्म में मौजूद हो, हाथ हरकत करेगा। रूह जिस्म में मौजूद हो, आंख देखेगी। रूह जिस्म में मौजूद हो, जुबान बोलेगी। रूह जिस्म में मौजूद हो, पांव उठेंगे, चलेंगे, बढ़ेंगे। जब रूह जिस्म से निकल जाए तो जो उज़्व जहां होगा वही ठहर जाएगा। जो उज़्व जहां होगा वही ठहर जाएगा। इसलिए कि रूह निकल चुकी है। यह कायनात इंसानी एक जिस्म है, शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से लेकर अजम तक। इसकी रूह जनाब मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन है। जब तक आप इस कायनात में मौजूद थे, यह निजाम चल रहा था। जैसे ही आप इस कायनात से निकले, समझो रूह निकल गई, कायनात रुक गई, कायनात थम गई। वक्त जहां था वही ठहर गया। हुजूर चले गए, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सबा समावात को उबूर किया, सिदरा पे पहुंचे, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, अर्शे इलाही पे पहुंचे। ऊपर सब कुछ चल रहा है। इस दुनिया की कायनात रुकी हुई है, थमी पड़ी है, इसलिए वक्त रुका हुआ है। और जब वक्त रुक जाए, जब वक्त रुक जाए तो फिर वहीं से चलेगा जहां से रुका था, और तब तक रुका रहा जब तक मोहम्मद मुस्तफा इस कायनात में पलट ना आए। जब मोहम्मद मुस्तफा मेराज से पलटे तो जहां रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। इसलिए फरमाया रात सारी नहीं लगी, आधी लगी।
असरा बिअब्दिही लैला, रात भी सारी नहीं, कुछ हिस्सा। यहां एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा, वो ये मेराज रात को ही क्यों हुआ? लैलन, रात की सराहत है। सवाल ये है मेराज रात को ही क्यों हुआ, दिन को नहीं हुआ? इसकी भी बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। मुहिब और महबूब की मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त रात का है। क्यों? इसलिए कि इसमें आदतन खलवत और तन्हाई ज्यादा होती है, इसलिए मेराज दिन को नहीं रात को हुआ। तहज्जुद की नमाज के लिए फरमाया इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। रात को बेदार होना यह नफ्स को ज्यादा रोंदता है और इसमें बात ज्यादा सीधी होती है। वो दिन के शोर शराबे नहीं होते, बात ज्यादा सीधी होती है। तो जब बंदा अल्लाह से इत्मीनान से मुलाकात करना चाहे, बात करना चाहे, मुनाजात करना चाहे, तो कुरान कहता है इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। तो अल्लाह ने भी अपने हबीब को मुलाकात के लिए दिन को नहीं रात को बुलाया। मेराज रात को क्यों हुआ? दूसरी हिकमत, हुजूर सरवरे कौनैन साकी कौसर शाफी महशर के मुतअद्दिद औसाफ हैं, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए। नबी के जितने औसाफ हैं उनका अमली इजहार भी किया। हुजूर के औसाफ में एक वस्फ सिराजे मुनीर है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराजे मुनीर रोशन चराग को कहते हैं और चराग के मुनासिब दिन नहीं रात का वक्त है। अल्लाह ने रात को मेराज पे बुला के आपके वस्फ सिराजे मुनीर का अमली इजहार फरमाया है। मेराज रात को क्यों हुआ? इसकी एक हिकमत और जिक्र करना चाहूंगा, वो ये, अगर मेराज दिन को होता, हुजूर दिन को जाते, दिन को वापस तशरीफ लाते, या आप रात को जाते, दिन को वापस आते, तो ईमान बिल गैब जो मकसूद है वो खत्म हो जाता। मुशाहदा की वजह से हर कोई ताईद और तस्दीक करता। अगर हुजूर दिन को मेराज करते, आसान लफ्जों में कहता हूं, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क वाज़ेह ना होता। अगर मेराज दिन को होता, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता। जब हुजूर दिन को मेराज पे जाते या दिन को आते, अबू जहल भी जाते और आते देखता, अबू बकर भी जाते और आते देखते, अबू जहल भी तस्दीक करता, अबू बकर भी तस्दीक करते, तो पता कैसे चलता इनमें सिद्दीक कौन है, जिंदीक कौन है? अल्लाह ने वाज़ेह करना था तो मेराज पर बुलाया भी उस वक्त जब अबू बकर भी सोए हुए थे, अबू जहल भी सोया हुआ था। न जाते हुए अबू बकर ने देखा, न अबू जहल ने देखा। रात को इशा के बाद गए और वापस फजर से पहले भिजवा दिया। आते हुए भी न अबू बकर ने देखा, न अबू जहल ने देखा। फिर जिसने बिन देखे नबी की बात पे एतमाद करके तस्दीक की, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया। जिसने तकज़ीब की उसे हमेशा के लिए जिंदीक बना दिया। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा। सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा।
नबी का रोजा है जिसका मदफन, नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई इलल मस्जिदिल अक्सा, पहले हिस्सा की मस्जिद अक्सा पे इंतहा हुई। दरमियान में कहां कहां रुके, कहां कहां नमाजें पढ़ी, क्या क्या मुशाहदात थे, रास्ते के क्या क्या हालातों वाक़यात थे। इख्तिसार के पेशे नजर इन सब बातों को लपेट रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, आदम ता ईसा जमी अंबिया आपके इस्तिकबाल के लिए बैतुल मक़दस की सरजमीन पे मौजूद थे। अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, एक मुअज़्ज़िन ने वहां अजान कही और फिर इकामत कही गई। इकामत के बाद जिब्राईल ने हुजूर को कंधे पे हाथ रख के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। जो पहले आए वो पीछे खड़े हुए, जो बाद में आए वो आगे बढ़ गए। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते क्या क्या सआदत है, नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा, अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा। नमाज के बाद दीगर अंबिया ने अल्लाह की हम्दो सना की, हुजूर ने भी की। उसके बाद यहां से अगला हिस्सा शुरू होने लगा। हुजूर अगले हिस्से की तरफ बढ़े, बहुत सारे वाक़यात और नुकात छोड़ रहा हूं, आगे बढ़े। एक सीढ़ी के जरिए आपको पहले आसमान पे पहुंचाया गया। जब आप पहले आसमान पे पहुंचे तो आदम ने मरहबा कहा, दूसरे पे ईसा ने मरहबा कहा, तीसरे पे यूसुफ ने मरहबा कहा, चौथे पे इदरीस ने मरहबा कहा, पांचवें पे हारून ने मरहबा कहा, छठे पे मूसा ने मरहबा कहा, सातवें पे इब्राहिम ने मरहबा कहा, जो बैते मामूर से पुश्त लगा के बैठे हुए थे। हुजूर वहां से आगे बढ़े, पास ही सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, उसके पास ही जन्नतुल मावा है। इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। आपने जन्नत की सैर की, बिलाल के कदमों की आहट सुनी। बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल देखा, फिर जहन्नम आप पे पेश की गई, यानी आपको दिखाई गई। फिर हुजूर यहां से आगे बढ़े, जिब्राईल सिदरा पे रुक गए क्योंकि उन्हें हुक्म ही यहां तक साथ रहने का था। आगे हुजूर अकेले बढ़े, शिफाउस सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्रिन नबील हबीब ने भी जिक्र की है। हुजूर फरमाते हैं सिदरा से आगे मुझे 70,000 हिजाबात तय करवाए गए, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ था। जब हुजूर चल रहे थे फरमाया इंसानों और फरिश्तों की आवाज आना, आहट सुनना बंद हो गई, तो मुझे खलवत और तन्हाई की वजह से वहशत महसूस हुई। हुजूर फरमाते हैं मैं तेजी से आगे बढ़ा तो मुझे अबू बकर के लहजे में आवाज आई कि रुक जाइए, ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। हुजूर फरमाते हैं मुझे दो बातों से ताज्जुब हुआ। नंबर एक, मेरा रब तो सलात से बेनियाज है, उसका सलात में मशगूल होना चेमानदारत। नंबर दो, अबू बकर की आवाज, अबू बकर मुझसे पहले कैसे आ गए? ये दो बातें हुजूर के लिए ताज्जुब का बाइस थी। इरशाद हुआ हबीब आपके रब के सलात में मशगूल होने का मतलब ये है, कुरान करीम की इस आयत को पढ़ लीजिए, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु
लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह और मलाइकतुल्लाह आप पर और आपकी उम्मत पर रहमत की बारिश बरसा रहे हैं। और रहा अबू बकर की आवाज का किस्सा, ये अबू बकर नहीं है, ये अबू बकर नहीं है, ये एक फरिश्ता है। अल्लाह ने जब से पैदा किया उसे यहां खड़ा किया हुआ है कि जब आप मेराज के सफर पे आएंगे, यहां से आगे आप अकेले बढ़ेंगे, आपको खलवत और तन्हाई की वजह से वहशत महसूस होगी। तो ये सबसे मायूस आवाज जो आपके नजदीक खलीफा अव्वल बिला फसल जानशीने पैगंबर खुसरे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, उसके लहजे में आपको आवाज देगा। ये अबू बकर नहीं है, फरिश्ता है, लेकिन लहजा अबू बकर का है। ये फरिश्ता है, तरसे तकल्लुम अबू बकर का है। ये फरिश्ता है, अंदाज़े गुफ्तगू अबू बकर की है। और ये इसलिए है कि सबसे मायूस आवाज आपके नजदीक सिद्दीक अकबर की है। और मुश्किल घड़ी में भी नबी के साथ अबू बकर ही थे जो तसल्ली का बायस थे, हौसले का बायस थे, नुसरत खुदाबंदी थे। इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाहु इस अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफरू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तो इसे इसी वक्त के लिए खड़ा किया गया कि जब आपको खलवत की वजह से, तन्हाई की वजह से वहशत महसूस हो, ये आपके यारे गार अबू बकर के लहजे में आपको आवाज दे, आपकी सारी वहशत खत्म हो जाए, जो कहा जाए वो समझा जाए। हुजूर आगे बढ़े, आगे अर्श पे पहुंचे, अल्लाह के करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला, यहां तकदीम और ताखीर है। तदल्ला फदना, मुफस्सिरीन ने लिखा है बुलंद हुए, करीब हो गए, बुलंद हुए, करीब हो गए। कितना करीब हुए? कुरान कैफियत का जिक्र करता है, फकान काब कौसैन औ अदना, इतना करीब हुए जितने दो कमानों के सिरे आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। औ अदना, औ बमाना बल, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। अल्लाह ने अपनी और नबी की आपस की कुर्बत को बयान करने के लिए अरब का एक मुहावरा इस्तेमाल किया। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, अहले अरब में रिवाज ये था कि जब एक आदमी दूसरे के साथ दोस्ती का ताल्लुक कायम करता तो वो दोनों अपनी कमानों के सिरे मिला के तीर चलाते, जिससे ये पैगाम दिया जाता, कमाने दो हैं मगर इनसे निकलने वाला तीर एक ही है, जो दोनों की मोहब्बत या नफरत का मुश्तरका तीर है। मतलब इसका यह है, अब ये दोनों एक हो चुके हैं। इस एतबार से हकीकत, इस एतबार से समझिए, ये दोनों एक है इस एतबार से कि एक का हरीफ दूसरे का हरीफ होगा, एक का हरीफ दूसरे का हरीफ होगा, एक का दोस्त दूसरे का दोस्त, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन। अल्लाह ने इस मुहावरे से यही समझाया, नबी का दोस्त खुदा का दोस्त। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह, ये दोस्ती के बारे में कहा जिन्होंने नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत की। जाहिर में उनका हाथ नबी के हाथ पे था, हकीकत में रब के हाथ पे था। मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, जाहिर में रसूल की इताअत की, हकीकत में अल्लाह की इताअत की। और जो नबी का दुश्मन व रब का दुश्मन, उसके लिए फरमाया वमा रमईता इज रमईता
वलाकिन अल्लाह रमा। ए हबीब, जिन्हें पत्थर तूने मारे, जाहिर में तूने मारे, हकीकत में तेरे रब ने मारे। कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। फकान काबा कौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर अल्लाह ने अपने बंदे को वही की जो अल्लाह ने चाही। मुहिब और महबूब के दरमियान की सारी बातें बताई भी नहीं जाती। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अलबत्ता ये मुसल्लम है, जब हुजूर दरबारे खुदाबंदी में पहुंचे तो जाते ही 3 तोहफे पेश किए। अत्तहियातु लिल्लाही, मौला कौली इबादतें तेरे लिए, वस्सलावात बदनी इबादतें तेरे लिए, वत्तय्यबात माली इबादतें तेरे लिए। और ये तो 3 अनवा की इबादत जिक्र की। हकीकत क्या है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबादला तहायत शुरू हुआ। अल्लाह ने 3 के बदले में फौरन 3 तोहफे दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, सलामती का तोहफा। व रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत भी हो, रहमत का तोहफा। व बरकातुहू, उसकी बरकतें भी हो, बरकतों का तोहफा। जब आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने अल्लाह की रहमत का, अता का, फयाजी और सखावत का दरिया जोश में पाया तो हुजूर ने फौरन दरखास्त कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका। नबी ने अर्ज किया अलैना, अकेले मुझ पे नहीं, हम सब पे। उनको भी शरीक करना है जो मक्के की सरजमीन पे तपती रेत पे लेट के कह रहे हैं आहत आहत, जिनके जिस्म का एक एक बाल कह रहा है हाल की जुबान से, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। उन्हें भी शामिल करना था जो तख्तेदार पे लटक गए दावते तौहीद के लिए। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे। अल्लाह ने फरमाया सलामु अलैका। नबी ने अर्ज किया सलामु अलैना। अल्लाह ने कबूल कर लिया। फिर हुजूर आगे बढ़े, सहाबा के बाद गुलामान सहाबा के लिए, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। क़यामत तक के अल्लाह के नेक बंदे मेराज की रहमत और बरकत में शरीक कर लिए गए। हमारे काबे शरीक है, क्यों ना हो। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंग यहां से उठा है वो पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्दा तक है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। हुजूर वापस पलटने लगे, फरमाया ओती तु लैलतल मेराज सलासत अशिया, मुझे 3 चीजें और दी गई। नंबर 1 अस्सलातुल खम्स, 5 नमाजें जो इब्तिदा में 50 थी। और फिर तमक्कुन बिल एहतिकाद, एहतिकाद पर चूंकि कुदरत हासिल हो गई, हनफियों के नजदीक नसक के लिए इतना ही काफी है, उसके बाद मनसूख हो गई। और एहतिकाद नबी का था, नबी इमाम थे, इमाम का एहतिकाद मुक्तदियों का एहतिकाद होता है। 45 मनसूख हो गई। 5 नमाजें व खवातीम सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा की आखिरी आयात का मजमून, व शफा और शफात,
کہ مشرک نہ ہو، تیرا امتی مشرک نہ ہو، موحد ہو، عمل میں کوتاہی اگر رہ گئی تو اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مشرک نہ ہو موحد، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کرے، تمثیل نہ کرے، وہ نافرمان ہے، اور جو شرک کرے وہ باغی ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نافرمان کے بارے میں، جس کی نافرمانی کی اس کی مرضی، جی میں آئے سزا دے، جی میں آئے بخش دے، لیکن جو باغی ہوتا ہے اسے دنیا کی کسی عدالت سے معافی نہیں دی جاتی۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اللہ کے نبی جو 3 تحفے اور لے کے آئے، ان میں ایک شفاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مشرک نہ ہو، موحد ہو، جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر اپنا جھکاتا نہیں ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر اپنا جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تحفے لیے واپس پلٹے۔ پہلے آسمان پہ ادھر سے آتے ہوئے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ملا، بتایا، کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی پوچھا، ان کو بھی بتایا۔ جب 50 نمازوں کا بتایا تو کہنے لگے حضور مجھے آپ کی امت پہ رحم آ رہا ہے، مجھے بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت کے لیے مشکل کا باعث ہوگا، آپ واپس دربار خداوندی میں جائیے، کمی کی درخواست کیجئے۔ حضور اپنے لیے نہیں، امت کے لیے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ حضور کے لیے نماز پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں تھی، 500 بھی ہوتی، اپنے لیے نہیں گئے، ہمارے لیے گئے۔ رحمت للعالمین تھے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت، آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نافسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے لیے گئے، 5 کم ہوئی، موسیٰ نے پھر بھیجا، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ گئے، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں حضور ایک دفعہ پھر جائیے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کچھ بھی لے کے نہ جاؤ۔ نہیں گئے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ملاقات تو پہلے ابراہیم سے ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ مشورہ کیوں نہ دیا کہ اللہ کے دربار میں جاؤ اور کمی کی درخواست کرو؟ انہوں نے مشورہ کیوں نہ دیا؟ اور حضرت موسیٰ نے کیوں دیا؟ یہ خاموش کیوں نہ رہے؟ توجہ کیجئے، وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم کا مقام مقام خلت ہے، مقام خلت مقام نیاز ہے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، اس میں سمینا واتانا، سننا اور عمل کرنا ہے، سوال کرنا نہیں ہے، بولنا اور پوچھنا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بے آب و گیا وادی میں بیوی بچے کو چھوڑ آؤ، کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا،
ये वादी जिसमें सब्जा था, न पानी था, न साया था, इसे आबाद कर देने को इब्राहिम आया था। यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाना था, यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बनाना। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल को भेज कर नहीं, ख्वाब में कि बेटे को ज़बह कर दो। तो कहा ठीक है जी, गर्दन पे छुरी रख दी। ये मकाम खुल्लत है, ये मकाम नियाज है, इसमें बोला नहीं जाता, बस सुना जाता है। और हजरत इब्राहिम कैसी मकाम के लिए अल्लाह ने फरमाया इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और हजरत मूसा का मकाम मकाम तकलीम है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, इसमें बोला जाता है। अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछा मातिल का भी यमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? अब मुख्तसर सा जवाब था ये आसा, ये मेरा आसा है, डंडा है। जो पूछा वो भी बता दिया, जो नहीं पूछा वो भी सुना दिया। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। तो इनका मकाम मकाम तकलीम था, तो इसी के लायक था कि मशवरा दे, इसलिए उन्होंने मशवरा दिया। एक नुक्ता और अर्ज करता हूं, तवज्जो, बात थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन समेट रहा हूं। एक नुक्ता और अर्ज करता हूं। हजरत मूसा ने ही मशवरा दिया और फिर एक दफा नहीं बार बार मत जाने का मशवरा दिया, और हुजूर गए क्यों? एक वजह यह भी है, हजरत मूसा ने दुनिया में कहा रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। ना सिर्फ यह कि देख नहीं सकता बल्कि हरगिज नहीं देख सकता। और अगर इसका पंजाबी में माना करें तो फिर सबको बात समझ आ जाएगी। हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा सोची नहीं ना, सोची नहीं ना। क्यों? इसलिए कि मूसा अल्लाह को देखने की ख्वाहिश कर रहे थे, आलम शाहिद में रहते हुए, आलम शाहिद के हवास के साथ। और देखना क्या चाहते थे? आलम गायब की चीजों को, आलम गायब की जात को, नेमत को। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। और हुजूर को जो मेराज पे अल्लाह ने दीदार करवाया, अगरचे हवास आलम शाहिद के थे लेकिन हुजूर आलम गायब में पहुंच चुके थे। तो आलम शाहिद के हवास आलम शाहिद में ना रहे बल्कि आलम गायब में जा पहुंचे। और जब आलम शाहिद के हवास आलम गायब में पहुंच जाते हैं फिर उनमें कुव्वत आलम शाहिद की नहीं रहती, आलम गायब की पैदा हो जाती है। फिर परताव आलम गायब की सिफात का पड़ जाता है। अगर कोई सवाल करे हजरत ईसा आसमानों पे है, वहां कज़ाए हाजत का क्या नज्म होगा, पेशाब पखाना, बोलो बराज, तो हम कहेंगे ये आलम शाहिद की जरूरियात है, आलम गायब की नहीं है। अब वो आलम गायब में है तो जैसे फरिश्तों को हाजत नहीं, उन्हें भी हाजत नहीं। हुजूर के आलम शाहिद के हवास जब आलम गायब में पहुंचे तो उनमें कुव्वत और पावर आलम गायब की पैदा हो गई। तवज्जो कीजिए, तवज्जो हो तो नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। बिलाल कहां चल रहे थे? मक्के की गलियों में। बिलाल कहां चल रहे थे? मक्के की गलियों में। और हुजूर कहां सुन रहे थे? जन्नत की गलियों में। यह है आलम गायब के हवास की पावर। कहते हैं सुनते नहीं, और जब आलम गायब में चले जाते हैं फिर पावर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जब जाओगे तुम्हें समझ आ जाएगी, जब जाओगे समझ आ जाएगी। तवज्जो कीजिए, शुक्र है आप समझे। इतना तो वक्त नहीं कि मैं खोल के समझाता, शुक्र है समझे हैं। तवज्जो कीजिए, अर्ज मैंने ये किया, अल्लाह ने हुजूर को दीदार करवाया
आलम गायब में बुलाकर। हवास गो आलम शाहिद के थे, लेकिन कुव्वत उनमें आलम गायब की पैदा हो चुकी थी। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं। तो आलम शाहिद में रह के, आलम शाहिद के हवास से आलम गायब की अशिया देखने की दरखास्त कर रहा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जब इसरार किया तो हुक्म हुआ पहाड़ पे देखो, तजल्ली डाली जाती है, उसको देखो। डाली गई तो हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, तजल्ली बर्दाश्त ना हो सकी। और हुजूर ने दीदार कैसे बर्दाश्त कर लिया? तवज्जो, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीन फी जिक्र नबील हबीब में लिखा है, हुजूर का 4 मरतबा शक्के सदर हुआ। उनमें एक मरतबा का शक्के सदर मेराज से पहले हुआ। हतीमे काबा में आपके सीने से कल्बे अतहर को निकाल कर धोया गया, उसमें इल्म और हिकमत का नूर भरा गया, फिर सिया गया। जब ये अमल हुआ तो इससे दीदार इलाही का तहम्मुल पैदा हो गया, इससे दीदार इलाही का तहम्मुल पैदा हो गया। तो हजरत मूसा ने मशवरा दिया, हजरत मूसा ने मशवरा दिया। क्यों? बार बार दिया। क्यों? बार बार भेजा। क्यों? कि मैं दुनिया में कहता रहा रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। चलो मैं तो रब को नहीं देख सका, जो मोहम्मद रब को देख के आया है मैं उस मोहम्मद को ही देखता रहा। वो बार बार रब को देखे, मैं बार बार शाह अरब को देखूं। अल्लाह की अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान। अल्लामुल गुयूब है, अलीमुम बिजाति सुदूर है। पता था 45 मुआफ हो जाएंगी, 5 लेके जाएंगे। और जब वापस पलटे 5 लेके, अल्लाह ने ऐलान भी किया कि ये पढ़ने में 5 है, अजर और सवाब में अब भी 50 है। और ये पहले से तय था कि आप 5 लेके जाएंगे, लेकिन आपके इल्म में नहीं था, इसलिए इसे तगय्युर और तबद्दुल समझा गया। और अल्लाह पे तो पहले से ही ये बात वाज़ेह थी, अल्लाह के इल्म में थी। और ये तरतीब जो है ये किसी हिकमत और मसलहत पे मबनी थी। जैसे हकीम दवाई तब्दील करता है, हिकमत और मसलहत के तहत बढ़ा और घटा भी देता है। हिकमत और मसलहत के तहत मरीज के इल्म में नहीं होता, हकीम को पहले से पता होता है कोर्स कैसे चलेगा। हुजूर पलटे पलटे 45 मुआफ हो गई। अल्लाह एक चक्कर में भी कर सकते थे, लेकिन 9 मर्तबा आना जाना हुआ। अल्लाह की रहमत भी जोश में थी। अल्लाह ने भी मूसा को दिखाया और समझाया कि मूसा, जिसे तू एक मर्तबा नहीं देख सका, ये इसी की शान है कि बार बार देखता, ये इसी की शान है कि बार बार देखता है। हुजूर नहीं गए 10वीं मर्तबा, 50 नमाजें लेके आए। एक नुक्ता अर्ज करता हूं, तवज्जो। फर्ज नमाजों की तादाद 5 है, फर्ज नमाजों की तादाद 5 है। इसकी हिकमत क्या है? एक हिकमत अर्ज करता हूं, तवज्जो। नमाज है अल्लाह की याद के लिए, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। और अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले असबाब 5 हैं, उन्हें हवासे खमसा कहते हैं। तो जब अल्लाह की याद से गफलत में मुब्तला करने वाले हवास 5 हैं, तो याद दिलाने वाली नमाजों की तादाद भी 5 है। अगली बात तवज्जो कीजिए, इन 5 नमाजों में, हर नमाज में 4 अरकान अल्लाह ने जमा किए। क़याम, रुकू, सुजूद, कुऊद, कादा, 4 जमा किए। किसी नबी की इबादत में ये चारों जमा नहीं थे। नबियों के नबी और आपकी उम्मत की इबादत में चारों जमा है, एक रकत में भी आ जाते हैं। क़याम, रुकू, सजदा, कादा, चारों को जमा किया गया। इसकी वजह क्या है? तवज्जो। एक वजह तो ये है, जब हुजूर मेराज पे गए तो सारे फरिश्ते इबादत में मसरूफ थे।
रास्ते में जो आपने देखे, फरिश्ते इबादत में मसरूफ थे। अब वो फरिश्ते जो इबादत कर रहे थे, एक टीम हालत क़याम में, इसकी ड्यूटी क़याम ही थी और कोई नहीं। दूसरी हालत रुकू में, बस वो हालत रुकू में ही थी। तीसरी हालत सजदा में, चौथी फरिश्तों की जमात हालत कादा में। जो क़याम में है वो क़याम में ही रहेगी, जो रुकू में है रुकू में ही है, सजदे वाली सजदे में है, कादे वाली कादा में है। अब एक जमात ने एक हालत में अल्लाह की इबादत को थामा हुआ है और दूसरी हालत की लज्जत उसने नहीं चखी। अल्लाह के नबी को ये चारों हालतें पसंद आ गई। जैसे नबी ने अब अपने लिए पसंद किया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। नबी ने फरिश्तों की चारों हालतें पसंद की, अल्लाह ने नमाज में जमा कर दी। अल्लाह ने नमाज में जमा कर दी ताकि नबी की इबादत, नबी की नमाज फरिश्तों की इबादतों की तमाम हालतों का मजमुआ बन जाए। एक वजह और है, तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। हर शय अल्लाह की हम्द करती है, तस्बीह तुम नहीं समझते। सारी कायनात, लेकिन कायनात की जो सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तस्बीह करती हैं। तो तस्बीह की शक्लें चार हैं। नंबर एक क़याम, ये दरख्त हालत क़याम में तस्बीह कर रहे हैं। नंबर दो रुकू, ये मवेशी हालत रुकू में तस्बीह कर रहे हैं। नंबर तीन सजदा, ये हशरातुल अर्ज हालत सजदा में है। नंबर चार कादा, ये आजार और दरो दीवार, ये हालत कादा में है। तो अल्लाह के नबी को जो नमाज दी, उसमें चारों को जमा करके अल्लाह ने बताया, नबी की इबादत और नमाज कुल कायनात की तस्बीह का खुलासा है। और फिर इंसान चार अनासिर से बना है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। तो चारों के कामिल शुक्राना के लिए अल्लाह ने इबादत में चार अरकान जमा फरमा दिए। हुजूर आए, तोहफे लेके बैतुल मक़दस उतरे, वहां से जमीनी सफर करके मक्का की सरजमीन पे पहुंचे। इशा के बाद गए थे, फजर से पहले पलट आए। जब आपने फजर के बाद मेराज का बयान किया, अबू जहल के कान में बात पड़ी, वो दौड़ा दौड़ा अबू बकर के पास आया कि आज फिसलाने का बड़ा सुनहरा मौका है, आज फिसला सकता हूं। कहने लगा, अच्छा बताओ, एक बंदा ये कहे कि मैं इतनी सी देर में इतना लंबा सफर करके आया हूं, अकल मानती है? हजरत अबू बकर की बसीरत देखिए। फरमाया, पहले ये तो बताओ कहा किसने है, पहले ये बताओ कहा किसने है। मेरे जैसा गरीब आदमी कहे मैं 1 घंटे में कराची पहुंच गया तो लोग नहीं मानेंगे। जिसके पास इतनी वुसत है कि वो जहाज का सफर कर सके, वो कहे मैं 1 घंटे में पहुंच गया तो लोग मान जाएंगे। तो कहने वाले के बदलने से बात का सिद्क और किस्ब बदल जाता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई भी हुक्म लगाने से पहले कहा, अच्छा बताओ कहने वाला कौन है? तो अबू जहल ने मजबूरी से बताया, तेरा नबी। कहा, अच्छा अगर मेरे नबी ने कहा है कि मैं गया हूं और रात के आधे हिस्से में गया हूं, ये तो फिर रात का कुछ हिस्सा बताया। अगर मेरा नबी कहता ना मैं पलक झपकने की देर में होके आ गया हूं, तो अबू बकर इसका भी इनकार ना करता। वो कहते अकल नहीं मानती। कहा, ये तू है जो सब चीजें अकल पे तोलता है। अकल फाइनल अथॉरिटी थोड़ा है। आज के मुतजद्दिदीन को भी यही धोखा हुआ है। अकल बात समझने के लिए मुआविन है, फाइनल अथॉरिटी नहीं। अगर सब कुछ अकल होती तो वही कभी ना भेजी जाती। सब कुछ अकल होती। जहां हवा से खमसा की इंतहा है, वहां से अकल की इब्तिदा है, और जहां अकल की इंतहा है वहां से वही की इब्तिदा है। कहा, तू अकल पे तोलता है, हम अकल पे नहीं तोलते, हम ईमान पे परखते हैं। ईमान, मेरा ईमान मानता है, तेरी अकल मानती है, माने नहीं मानती ना माने, ईमान मानता है। और कहा, अबू जहल तू कितना बदबख्त है, तू कितना बदबख्त, नबी से सुन के आया है? जी नबी से सुन के आया हूं। अच्छा मैंने अभी तक नबी से नहीं सुना, मैंने तुझसे सुना है, लेकिन तूने हवाला चूंकि नबी का दिया,
اب دیکھ تو کتنا بدبخت ہے، تو نبی سے سن کے بھی نہیں مانا، اور میں نبی کے حوالے کی وجہ سے تجھ سے سن کے بھی مان گیا ہوں، تو تیرے جتنا بدبخت بھی کوئی ہے؟ بس یہ وہ وقت تھا، اللہ نے ابو بکر کو ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا، ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے زندیق بنا دیا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ کاش اس امت کو صدیق اکبر کا سا یقین حاصل ہو جائے کہ دین کی بات عقل میں آئے تب بھی مانی جائے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانی جائے۔ ہم یہ تو پوچھے نبی نے کیا فرمایا، یہ زبان پہ نہ لائے کیوں فرمایا۔ یہ تو پوچھے کیا کرنا ہے، یہ نہ پوچھے کیوں کرنا ہے۔ یہ سبق صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے، اس لیے یہ کہہ کے اجازت لے رہا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب